آئیں ہم خدا کے کلام کا مطالعہ واز کے عنوان خدا کی محبت کے تحت کرنے میں گزارتے ہیں۔ بہت عرصہ پہلے خرگوش خاندان رہتا تھا۔ خرگوش کا بچہ ایسی عمر کو پہنچ گیا جہاں وہ روانی سے بول سکتا تھا اور کافی دلکش اور خوبصورت لگتا تھا۔ ایک دن جب خرگوش کا باپ اور خرگوش کا بچہ گرم بہار میں سورج کی روشنی کو محسوس کرتے ہوئے کھیت میں ٹہل رہے تھے تو اچانک خرگوش کے بچے نے اپنے باپ سے بات کی۔ پاپا جی، کیا آپ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں؟ بے شک میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ تو پھر کیا آپ مجھ سے اتنی محبت رکھتے ہیں؟ اور اس نے اپنے بازو پھیلائے۔ بچہ ہونے کے ناطے چاہے اس نے اپنے بازو جتنے بھی پھیلائے ہوں وہ زیادہ دور تک نہیں پھیلے۔ اس لیے باپ نے یہ کہتے ہوئے کہ میں تم سے اس سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں اپنے بازو پھیلائے جو خرگوش کے بچے کو ناقابل یقین حد تک وسیع لگ رہے تھے۔ جب بچے نے اس کے بارے میں سوچا تھا تو اسے لگا کہ وہ باپ سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ تاہم جب اس نے اپنے پھیلے ہوئے بازوؤں کا موازنہ اپنے باپ کے بازوؤں کے ساتھ کیا تو وہ آدھے بھی نہیں تھے۔ اس لیے یہ سوچتے ہوئے کہ میں کیسے دکھاؤں کہ میں ان سے زیادہ محبت رکھتا ہوں، اب اس نے ادھر ادھر کودنا شروع کر دیا۔ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، یہ کہتے ہوئے اس نے ہر ممکن حد تک اونچی چھلانگ لگانے کی کوشش کی، لیکن بچہ ہونے کے ناطے اس نے ابھی تک اپنی ٹانگوں میں زیادہ عضلہ تیار نہیں کیا تھا اور وہ زیادہ اونچا کود نہیں سکتا تھا۔ پاپا جی، آپ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ باپ خرگوش یہ کہتے ہوئے کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، اوپر نیچے کودنے لگا کہ اس کے کان درخت کی اونچی ڈالیوں کو چھو سکتے تھے۔ اگرچہ بچے نے محسوس کیا کہ وہ اپنے باپ سے اتنی ہی محبت کرتا ہے، پر وہ ہرگز اپنے باپ کی محبت کی حد تک نہیں پہنچ سکا، چاہے اس نے کتنی ہی کوشش کی۔ اس مختصر کہانی کے ذریعے جو میں آپ سب تک پہنچانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ چاہے ہم خدا سے کتنی ہی محبت رکھتے ہوں، ہم خدا کی ہمیں بخشی گئی محبت کا آدھا، 10واں حصہ یا 1واں حصہ بھی نہیں بھر سکتے۔ میں نے بچوں کی کتاب میں ایسی کہانی دیکھی تھی۔ چاہے بچے اپنے والدین سے کتنی ہی محبت رکھتے ہوں، محبت دکھانے کی ان کی صلاحیت محدود ہے، لیکن باپ اور ماں کی محبت چاہے کتنی ہی معمولی دکھائی جائے، ہمیشہ عظیم اور زبردست ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ ان کی محبت کی بلندیوں کا موازنہ نہیں کر سکتے اور نہ ہی آپ ان کی محبت کی چوڑائی کا موازنہ کر سکتے ہیں۔ اس لیے آج ہم کچھ وقت یہ سیکھنے میں گزارتے ہیں کہ خدا کی محبت کو درست طور پر سمجھنے سے ہم تیزی سے خوشخبری کی تکمیل کی طرف پیش رفت کر سکتے ہیں اور دیانتداری سے ان تمام فرمانوں، ضابطوں اور قوانین پر عمل کر سکتے ہیں جن کا خدا نے ہمیں اپنے فضل کے تحت ماننے کا حکم دیا ہے۔ اس زمانہ میں اگر کوئی درست طور پر خدا کی محبت کو سمجھنے میں ناکام رہتا ہے یا خوشخبری کی سرگرمیوں میں مشغول رہتا ہے تو وہ ناگزیر طور پر تھکاوٹ کا باعث بنے بغیر زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہ سکتا۔ دوسری طرف اگر ہم درست طور پر خدا کی محبت کو سمجھیے اور خوشخبری کو انجام دیں تو میرے خیال سے ہم خوشخبری کے کام کو 100 سال یا 1000 سالوں تک جاری رکھ سکتے ہیں۔ ورنہ یہ ایسی خوشخبری بن جاتی ہے جس کی منادی صرف اور صرف ہماری ذاتی خوشی اور تسکین کے لیے کی گئی تھی۔ ہم خوشخبری کے حقیقی معنی کو سمجھے بغیر جو خدا چاہتے ہیں اسے محض انجام دے سکتے ہیں۔ تو پھر ناگزیر طور پر ہم بہت جلد تھک جائیں گے، جس سے ہم اکتا ہٹ محسوس کریں گے، مشکلات کا سامنا کریں گے اور مایوسی کا تجربہ کریں گے۔ اس لیے ہمیں کتاب مقدس کی تمام تعلیمات سے مسلسل خدا باپ اور خدا ماں کی محبت کو دریافت کرنا چاہیے اور خوشی اور شکرگزاری سے بھرے دل کے ساتھ دیانتداری سے خوشخبری کی راہ پر چلنا چاہیے۔ ہم یوحنا کی کتاب باب 3 آیت 16 کی طرف جاتے ہوئے خدا کی محبت کے بارے میں مطالعہ کرتے ہیں۔
आए बाब 3 आयत 16 देखते हैं। क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। खुदा ने दुनिया और दुनिया में अपने फर्जंदों से बहुत मोहब्बत रखी। क्या इसीलिए वो इस ज़मीन पर इकलौते बेटे के तौर पर नहीं आए और अपने फर्जंदों के लिए सलीब पर अपना बदन कुर्बान किया और अपना कीमती खून बहाया, ताकि हम गुनाहों की मुआफ़ी और निजात हासिल कर सकें? बस यूहन्ना बाब 3 में दी गई तालीम यह है कि खुदा अपने लोगों यानी अपने फर्जंदों को जो दुनिया में हैं अजीज़ रखते और मोहब्बत रखते हैं। आएँ यशायाह बाब 53 से हम मज़ीद तफसील से जायज़ा लेते हैं कि कैसे खुदा ने अपने फर्जंदों को अजीज़ रखा। हम यशायाह की किताब बाब 53 आयत 1 से देखते हैं। यशायाह बाब 53 आयत 1। मेरे पैगाम पर कौन ईमान लाया और खुदावंद का बाजू किस पर जाहिर हुआ? पर वो उसके आगे कोंपल की तरह और खुशक ज़मीन से जड़ की मानिंद फूट निकला है। न उसकी कोई शक्ल व सूरत है न खूबसूरती, और जब हम उस पर निगाह करें तो कुछ हुस्न व जमाल नहीं कि हम उसके मुश्ताक हों। वो आदमियों में हकीर व मरदूद, मर्द गमनाक और रंज का आशिना था। लोग उससे गविया रुपूश थे, उसकी तहकीर की गई और हमने उसकी कुछ कदर न जानी। आयत 4। तो भी उसने हमारी मुशक्क़तें उठा लीं और हमारे गमों को बर्दाश्त किया, पर हमने उसे खुदा का मारा कूटा और सताया हुआ समझा। हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकिरदारी के बायस कुचला गया। हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई, ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएं। हम सब भीड़ों की मानिंद भटक गए, हम में से हर एक अपनी राह को पिहरा, पर खुदावंद ने हम सब की बदकिरदारी उस पर ला दी। वो सताया गया तो भी उसने बर्दाश्त की और मुंह न खोला। जिस तरह बर्रा जिसे ज़ब्ह करने को ले जाते हैं और जिस तरह भीड़ अपने बाल कुतरने वालों के सामने बेजुबान है, उसी तरह वो खामोश रहा। वो जुल्म करके और फतवा लगाकर उसे ले गए, पर उसके ज़माना के लोगों में से किसने ख्याल किया कि वो जिंदों की ज़मीन से काट डाला गया। मेरे लोगों की खताओं के सबब से उस पर मार पड़ी। उसकी कब्र भी शरीरों के दरमियान ठहराई गई और वो अपनी मौत में दौलतमंदों के साथ मुआ, हालांकि उसने किसी तरह का जुल्म न किया और उसके मुंह में हरगिज छल न था। लेकिन खुदावंद को पसंद आया कि उसे कुचले, उसने उसे गमगीन किया। जब उसकी जान गुनाह की कुर्बानी के लिए गुजरानी जाएगी तो वो अपनी नस्ल को देखेगा। उसकी उम्र दराज होगी और खुदावंद की मर्जी उसके हाथ के वसीला से पूरी होगी। अपनी जान ही का दुख उठाकर वो उसे देखेगा और सीर होगा। अपने ही इरफान से मेरा सादिक खादिम बुहतों को रास्तबाज ठहराएगा, क्योंकि वो उनकी बदकिरदारी खुद उठा लेगा। इसलिए मैं उसे बुजुर्गों के साथ हिस्सा दूंगा और वो लूट का माल जोरावरों के साथ बांट लेगा, क्योंकि उसने अपनी जान मौत के लिए उंडील दी और वो खताकारों के साथ शुमार किया गया। तो भी उसने बहुतों के गुनाह उठा लिए और खताकारों की शफाअत की। हम यसायाह नबी की पेशिंगोई में दर्ज उस तमाम मंजर को देखते हैं जहां उन्हें हमारी खुताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकिरदारी के बायस कुचला गया। यसायाह की नबूवत से हम देख सकते हैं कि खुदा बाप और खुदा माँ दोनों ने खुद अपने फर्जंदों के तमाम गुनाह उठा लिए और खुद पर ऐसे बोझ लादते हुए जिंदगी गुजारी। किसी ने हमें ये नहीं सिखाया है और न ही बताया है, बल्कि इस नुक्ता नज़र से खुदा ने अपने तमाम फर्जंदों की रहनुमाई करने और बचाने की कोशिश की है।
이끄시고 또 살리시기 위해서 애쓰셨다는 것입니다. किताब मुक़द्दस कहती है कि उन्होंने खुद हमारी तमाम ख़ताओं को उठा लिया। किताब मुक़द्दस में बहुत से अहकाम हैं, लेकिन ये क्या कहती है कि सबसे बड़ा हुक्म किया है? आए मत्ती बाब 22 आयत 35 की तरफ जाते हैं। बाब 22 आयत 35। और उनमें से एक आलिम शरा ने आजमाने के लिए उससे पूछा, ए उस्ताद, तौरेत में कौन सा हुक्म बड़ा है? उसने उससे कहा कि खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अक्ल से मोहब्बत रख। बड़ा और पहला हुक्म यही है। 이것이 크고 첫째 되는 계명이라고 이렇게 알려주셨습니다. जो कुछ खुदा ने हमें बख्शा है, उसके मुकाबले में हम उनकी मोहब्बत की वसअत तक नहीं पहुंच सकते, चाहे हम कितने ही बाजू फैलाएं। 그 사랑의 넓이에 도달할 수가 없습니다. जो कुछ खुदा ने हमें बख्शा है, उसके मुकाबले में हम खुदा की मोहब्बत की बुलंदी के नज़दीक भी नहीं पहुंच सकते, चाहे हम अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए कितनी ही ऊंची छलांग लगाएं। खुदा ने हमारे तमाम गुनाहों और ख़ताओं को उठा लिया, और यहाँ तक कि दुखों में भी ये नहीं कहा कि ये तकलीफ़ दह है, या मुश्किल में कि ये मुश्किल है। खुदा ने अपने फर्जंदों को उनके गुनाहों से बचाने के लिए सब कुछ ही सरफ कर दिया। इसलिए मत्ती बाब 22 हमें क्या करने को कहता है? तू अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख। बड़ा और पहला हुक्म यही है। बेशक इस बड़े हुक्म में नए अहद की फ़सा में उनके गोशित और खून का मौरूसी मफहूम भी मौजूद है। सबसे बढ़कर हमें बाप और माँ की मोहब्बत को दुरुस्त तौर पर समझने और उन पर ईमान रखते हुए खुशखबरी को अंजाम देने की ज़रूरत है, ताकि हम कामिल ईमान के साथ अमल कर सकें। फिर ऐसे ईमान की बजाय जिसका मकसद दूसरों को देखना हो या किसी से पहचान की उम्मीद हो, क्या हम वाकई खुदा और मेरे माबेन ताल्लुक़ के तौर पर खुदा की राह पर चलने के काबिल नहीं होंगे? किताब मुक़द्दस हमें सिखाती है कि खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रखो। बड़ा और पहला हुक्म यही है। हमें इस बात की तरगीब देते हुए कि पहले वो ईमान रखें जो खुदा से मोहब्बत रखना जानता है। हम मजलूम महसूस करते हैं सिर्फ इसलिए कि हम सब कुछ अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं कर सकते। जब हमें मामूली सी भी मुश्किल का सामना हो तो हम कहते हैं, ये मुश्किल है, ये तकलीफ दह है। ऐसे ख्यालात रखना इंसानी फितरत लगती है। ताहम ये सोचते हुए कि खुदा ने खुद को हमारी वजह से वो सब करने से रोका जो उन्होंने चाहा, और अपनी सारी ज़िंदगी अपने बच्चों को बचाने के लिए वक्फ कर दी, हमें अपने बाप और माँ की लामहदूद कुर्बानी और मोहब्बत को महज ये इजहार बयान नहीं समझना चाहिए कि सलीब पर बहाया गया कीमती खून। हमें गौर करने की ज़रूरत है कि हमारा वजूद और नए अहद की सच्चाई इससे भी बड़ी कुर्बानी के वसीला पैदा हुई थी। चाहे हम बाप और माँ से अपने सारे दिल, अपनी सारी अक्ल और अपनी सारी जान से कितनी ही मोहब्बत रखते हैं, खुदा हमेशा हमसे ऐसी मोहब्बत से पेश आते हैं जो उस मोहब्बत से कहीं ज़्यादा है जो हम खुदा के लिए रखते हैं। हम सबको यकीनी बनाना चाहिए कि हम इसे हरगिज़ न भूलें। जब हम अपने आसमानी वालिदैन की मोहब्बत को मुकम्मल तौर पर समझ लें, तो क्या हम अपनी असल हालत दोबारा हासिल नहीं कर लेते? पहला कुरिन्थियों बाब 15 में क्या कहा गया है कि आखिरी लम्हा पर क्या होगा? हम सब एक दम में बदल जाएंगे। वो जलाली दिन जल्द आना चाहिए जब हमारे फ़ानी बदन अचानक गैरफ़ानी बदनों में बदल जाएंगे, और इसमें सबसे अहम अंसुर दुरुस्त तौर पर खुदा की मोहब्बत का एहसास करना और इसे दुरुस्त तौर पर समझना है। हमें बाप की राह पर चलने और माँ की राह का तजर्बा करने की इजाज़त देने के लिए खुदा ने हमें मुनादी का ख़ास काम सौंपा है, क्या नहीं सौंपा?
지금 전 दुनिया 세계 भर के तमाम मुक़द्दसीन 모든 मुस्तैदी से इस काम को अंजाम दे रहे हैं, 그렇게 하고 있습니다. चाहे ज़्यादा 육체적으로 साजगार 좀 माहौल में 좋은 हो या कम 곳에서도 साजगार माहौल में, 척박한 곳에서도 하고 हर एक की सूरत हाल और मकाम मुख्तलिफ होता है, लेकिन ज़ाती तौर पर मेरा मानना है 좀 कि जो 어려운 लोग 곳에서 ज़्यादा मुश्किल 복음을 जगहों पर खुशखबरी की 해보시는 मुनादी 분들이 करते हैं, वो 하나님 खुदा की 그 मोहब्बत को 사람들을 ज़्यादा 많이 शिद्दत से 좀 महसूस 느낄 कर 수 सकते हैं। 있다라고 개인적으로 그렇게 생각이 됩니다. 예. बेशक 물론 이제 खुशखबरी के 환경이 काम 좋은 को 곳에서 साजगार 많은 माहौल में 복음 अंजाम 활동도 देना अच्छा है, 좋은 लेकिन जब हम 활동이라고 볼 ज़्यादा 수 मुश्किल 있지만 हालात में खुशखबरी का 좀 काम करते हैं 어려운 तो हम 여건과 इब्तदाई 환경 दिनों में 속에서 बाप की कुर्बानी और 우리가 माँ की 복음 मुश्किलात 활동을 को 하게 되면 मुकम्मल तौर पर सीख 그 सकते 아버지의 और उनकी कदर 희생과 कर सकते हैं। 어머니의 초창기의 그 고난을 오롯이 또 익히고 또 배울 수가 있거든요. 예, 그래서 इसलिए आज के वाज का 오늘 अनुवान है खुदा 하나님의 की 그 मोहब्बत। 사랑이라는 이 주제 속에 चूँकि 초대교회 इब्तदाई कलीसिया के 성도들은 मुक़द्दसीन 이런 खुदा की 하나님의 मोहब्बत को 사랑을 गहराई से 깊이 समझते 깨달았기 थे, 때문에 그 इसलिए 수많은 उन्होंने रोमी 환란과 एम्फी थिएटर्स में 핍박에와도 शहादत का सामना करना 또 एक बड़ा 로마 एजाज़ समझा। 오란도전에서 그 로마 जब उन्हें 폭군들이 बेशुमार फितनों और अजियतों का निशाना बनाया गया था, और हत्ता कि उन लम्हात में भी जब रोमी जाबिरों ने शेरों को मसीही खिलाए थे। 같은 일을 굉장히 영광으로서 받아들인 그런 장면이 있었죠. 우리 आए हम 사도행전 अमाल 20장 बाब 20 먼저 खोलते हैं। 한번 열어봅시다. अमाल 사도행전 बाब 20 आयत 20장 22। 22절입니다. और अब देखो, मैं रूह में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूँ, और न मालूम कि वहाँ मुझ पर क्या क्या गुजरे, सिवाय इसके कि रूहुल कुद्स हर शहर में गवाही दे देकर मुझसे कहता है कि कैद और मुसीबतें तेरे लिए तैयार हैं। लेकिन मैं अपनी जान को अजीज़ नहीं समझता कि उसकी कुछ कदर करूं बमुकाबला इसके कि अपना दौर और वो खिदमत जो खुदावंद यीशु से पाई है पूरी करूं, यानी खुदा के फजल की खुशखबरी की गवाही दूं। पौलुस रसूल इस किस्म का ईमान रखने के काबिल था जब उसने मसीह में खुदा की मोहब्बत को मुकम्मल तौर पर समझा। खुदा की मोहब्बत को समझने के बाद वो ऐसे बोल सका, गविया खुशखबरी की खातिर अपनी जान देना मामूली बात है। हम बाब 21 पर जाते हैं। आए बाब 21 आयत 10 से देखते हैं। और जब हम वहाँ बहुत रोज़ रहे तो अगबुस नाम एक नबी यहूदिया से आया। उसने हमारे पास आकर पौलुस का कमरबंद लिया और अपने हाथ पांवों बांध कर कहा, रूहुल कुद्स यूं फरमाता है कि जिस शख्स का ये कमरबंद है उसको यहूदी यरूशलेम में इसी तरह बांधेंगे और गैर कौमों के हाथ में हवाला करेंगे। जब ये सुना तो हमने और वहाँ के लोगों ने उसकी मिन्नत की कि यरूशलेम को न जाए, मगर पौलुस ने जवाब दिया कि तुम क्या करते हो, क्यों रो रो कर मेरा दिल तोड़ते हो। मैं तो यरूशलेम में खुदावंद यीशु के नाम पर न सिर्फ बांधे जाने बल्कि मरने को भी तैयार हूँ। पौलुस रसूल की जहनियत और इब्तदाई कलीसिया के मुक़द्दसीन का ईमान दोनों मुस्तकिल तौर पर खुदा के लिए बड़ी मोहब्बत को ज़ाहिर करते हैं। सिर्फ इसलिए कि वो यीशु पर ईमान रखते थे, उन्हें कौमी सतह पर मुख्तलिफ सज़ाओं का सामना करना पड़ा, जिनमें इंसानी मिसालों के तौर पर इस्तेमाल होना भी शामिल था। फिर भी उनका ऐसी सज़ा से बचने की कोशिश करने का कोई इरादा नहीं था। इसकी बजाय उन्होंने कहा, वो मोहब्बत कितनी बड़ी है जो खुदा ने हमसे रखी है। उनमें मसीह की ख्वाहिश और खुदा की बादशाही की उम्मीद थी जिसका उन्होंने वादा किया था। उनके ईमान का महवर हमेशा तालीमात पर था, जैसे कि तुम हरगिज़ अपना ईमान न खोना चाहे, कोई इसे तुमसे छीनने की कोशिश करे, क्योंकि आसमान की अब्दी बादशाही यकीनन तुम्हारी होगी। उनका ठुट्ठा किया गया, कोड़े मारे गए, जंजीरों में जकड़े गए और कैद में डाले गए, संसार किए गए, दो टुकड़े किए गए, तलवार से मारे गए, मुफलिसी, दुख और बदसलूकी में ज़िंदगी गुजारी। अब ऐसी सूरत हाल का 10वां या 100वां हिस्सा भी हमारे दरमियान रूनमा नहीं होता है। इस ज़माना में खुदा ने उस अजियत को कम कर दिया है जिसका इब्तदाई कलीसिया ने तजर्बा किया था। हत्ता कि ऐसे हालात में भी उनका ईमान अटल रहा, क्योंकि वो हर रोज़ खुदा की मोहब्बत को याद करते और महसूस करते थे।
इसलिए चाहे उन्हें कितनी ही अज़ियतों और मुश्किलात का सामना हो, वो हरगिज़ खुदा की जानिब अपने ईमान की राह को तर्क नहीं कर सकते थे। 하나님을 향한 그 믿음의 길을 결단코 중단할 수가 없었던 것입니다. 예. आए हम इब्तदाई कलीसिया की सूरत हाल और हालत का बगूर जायज़ा लेते हैं। हम रूमियों की किताब बाब 8 आयत 35 से देखते हैं। 함께 보겠습니다. रूमियों बाब 8 आयत 35। कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा? मुसीबत या तंगी या जुल्म या काल या नंगापन या खतरा या तलवार? चुनांचा लिखा है कि हम तेरी खातिर दिन भर जान से मारे जाते हैं, हम तो ज़िब्ह होने वाली भीड़ों के बराबर गिने गए। मगर उन सब हालतों में उसके वसीला से जिसने हमसे मोहब्बत की हमको फतह से भी बढ़कर गलबा हासिल होता है, क्योंकि मुझको यकीन है कि खुदा की जो मोहब्बत हमारे खुदावंद मसीह यीशु में है, उससे हमको क्या न मौत जुदा कर सकेगी, न जिंदगी, न फरिश्ते, न हुकूमतें, न हाल की, न इस्तकबाल की चीज़ें, न कुदरत, न बुलंदी, न पस्ती, न कोई और मखलूक दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो खुदा और हमारे दरमियान मोहब्बत के ताल्लुक को तोड़ सके। चूँकि इब्तदाई कलीसिया के अराकीन ने इस बात को समझा था, इसलिए वो ईमान की उस राह पर चलने को तैयार थे जिसमें आरामदेह और आसूदा ज़िंदगी नहीं थी। कायनात में कितने सितारे हैं? हत्ता की कहकशाओं में जिनकी तादाद अरबों में है, पहले ही ज़मीन और सूरज जैसे सितारों की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। 200 अरब सितारे ज़मीन के वजूद को मामूली बनाते हैं। फिर भी आसमानी बाप और आसमानी माँ इस ज़मीन पर हमारे लिए आए हैं। सिर्फ ये हकीकत कि वो आ चुके हैं नाकाबिल यकीन हद तक हमें आजिज़ी और शुक्रगुजारी से भर देती है। इब्तदाई कलीसिया के मुक़द्दसीन को एहसास हुआ कि दुनिया की कोई चीज़ उन्हें मसीह की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती, चाहे वो कितनी ही कीमती क्यों ना हो। चूँकि उन्होंने दुरुस्त तौर पर खुदा के लिए मोहब्बत और मोहब्बत के रूह को समझा था, तो उन्होंने क्या हासिल किया था? उन्होंने ईमान हासिल किया था। उन्हें और क्या हासिल हुआ था? उन्होंने आसमान की बादशाही की उम्मीद हासिल की थी। हमें खुदा से मोहब्बत रखनी चाहिए। खुदा के लिए मोहब्बत रखे बगैर हमारा ईमान नहीं बढ़ सकता और उम्मीद पैदा नहीं हो सकती। बस हम खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत कैसे रखें? अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अक्ल और अपनी सारी ताकत से। यीशु ने कहा, बड़ा और पहला हुक्म यही है। अगर हमें खुदा की बख्शी गई मोहब्बत हमारे अंदर मौजूद न हो और न समझी जाए, तो हम हरगिज़ ईमान की इस राह पर नहीं चल सकते। यहूदा इस्करियोती की तरह हम बीच में धोखा देंगे या आखिर तक खुशखबरी की राह को मुकम्मल करने में नाकाम रहेंगे और दुनिया की जानिब दौड़ेंगे। हमारा अंजाम सिर्फ ऐसे अहमकाना ईमान के जाल में फंस जाएगा। अगरचे खुदा आसमान पर वाकई पुरअमन ज़िंदगी का लुत्फ़ उठा सकते थे, पर वो इस ज़मीन पर आए और जिस्म का खैमा पहना। ये हमारे लिए दुख उठाने के उनके अज़्म की निशानदही करता है। दुनिया के लोगों की तज़हीक, ठट्ठों और बुहतानों के बावजूद बाप और माँ ने आखिर तक हमारी हिफाजत करने का अज़्म किया। इब्तदाई कलीसिया के मुक़द्दसीन ने समझा कि उनका वजूद उनकी कुर्बानी और मोहब्बत से मुमकिन हुआ था। इसी इल्म की बदौलत वो ऐसा ईमान रखने के काबिल हुए जिसके लायक दुनिया नहीं थी। इस ज़माना में भी हमें खुदा की तरफ से सामरिया और ज़मीन की इंतहा तक खुशखबरी की मुनादी करने का अजीम काम मिला है। जैसा कि हमने पहले अमाल की किताब में देखा था, पौलुस रसूल ने खुदा के ख़ास काम की मुकम्मल तकमील में अपनी ज़िंदगी को गैर अहम समझा। कौन हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा?
बुलुस रसूल ने जोर दिया कि इस दुनिया में कुछ भी हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकता। उसने बयान किया कि ये कितना नाकाबिल तसव्वुर है कि ऐसी बेपनाह और गहरी मोहब्बत को तर्क करने का मशूरा दिया जाए जो खुदा ने हमें बख्शी है, या इसके साथ ऐसा सलूक करना गविया, ये कुछ भी नहीं है। इसी वजह से इब्तदाई कलीसिया के तमाम मुक़द्दसीन के साथ साथ रसूल और अनबिया भी किसी मुआशरती नुकसान या ख़तरात से नहीं डरते थे। अगर हम खुदा की मोहब्बत को नहीं समझते तो हम आसानी से हार मान सकते हैं। ये जाने बगैर कि बाप और माँ ने हमारे लिए किया किया है, हम सिर्फ ये सोचेंगे कि आज हफ्ता है इसलिए मुझे चर्च जाना चाहिए, और महज अपनी निजात और गुनाहों की माफ़ी के लिए नहीं बल्कि अपने रहनुमाओं का चेहरा देखने जाएंगे। मेरा मानना है कि ये बिल्कुल गलत सिमत है। खुदा की मोहब्बत का यकीन रखते हुए हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि खुदा हमारी रहनुमाई कैसे कर रहे हैं। इस ज़मीन पर आने के लिए उन्होंने आसमान में से किस किस्म के जलाल को तर्क किया? हमारे गुनाहों के कफ़ारे के लिए वो कुर्बानी की किस राह पर चले थे? हमें इन बातों पर एक एक करके गौर करना चाहिए, जैसा कि रोमियो बाब 8 में बयान किया गया है, क्योंकि मुझको यकीन है कि खुदा की जो मोहब्बत हमारे खुदावंद मसीह यीशु में है, उससे हमको न मौत जुदा कर सकेगी, न ज़िंदगी, न फरिश्ते, न हुकूमतें, न हाल की, न इस्तिकबाल की चीज़ें, न कुदरत, न बुलंदी, न पस्ती, न कोई और मखलूक। चाहे कैसी भी आजमाइशें, मुसीबतें या अजियतें हम पर आएं, अगर हम हमेशा खुदा की मोहब्बत को याद रखें तो खुदा ने हम सबको हमारे अब्दी आसमानी वतन वापस ले जाने का वादा किया है। क्या नया अहद बिल्कुल ठीक है जहां वो तमाम तालीमात दर्ज हैं? नए अहद की सच्चाई में कुर्बानी का खून है जो खुदा की मोहब्बत को जाहिर करता है, और इसमें मसीह का गोश्त समा गया है। क्योंकि वो मोहब्बत जो उनके फर्जंदों को उनके गोशत और खून के वसीला से बचाती है, नए अहद की सच्चाई में मौजूद है। इसलिए हमें आखिरी ज़माना तक इसके फरमान व आइन और कवानीन की कदर करनी चाहिए। हम नए अहद के अंदर खुदा की बेपनाह मोहब्बत के लिए हमेशा शुक्रगुजार दिल रखें और इस एहसास तक पहुँचें जैसा कि रोमियो बाब 8 में दर्ज है। दुनिया की कोई चीज़ हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती। खुदा ने हमसे कितनी मोहब्बत रखी और हमें कितना अजीज़ रखा कि उन्हें इस ज़मीन पर आना पड़ा। पुराने अहद नामा की 1500 सालों की तवील तारीख में खुदा बेशुमार बार हमारे लिए क्यों कुर्बान हुए? उन बेशुमार कुर्बानियों के बायस नया अहद कायम हुआ था। आप सब, नया अहद ऐसे ही कहीं से नहीं बनाया गया था। ये महज एक दिन मरकज़ के बाला खाना में इन अल्फाज के साथ बनाया नहीं गया था कि ये रोटी मेरा बदन है और ये प्याला मेरे उस खून में नया अहद है। जिस्मानी नुक्ता नज़र से शायद ऐसा लगता हो, लेकिन रूहानी जहान में नए अहद को कायम करने के लिए वाक़यात आखिरकार खुदा के बेशुमार तकलीफ़ों, कुर्बानियों और उनके खून बहाने के वसीला पूरे हुए थे। 새 언약이라는 것을 세울 수 있는 조건을 이제 갖추시게 된 것입니다. 우리가 이런 जब हम पुराने अहद नामा में कुर्बानियों के ज़ाबिते और नए अहद नामा में रसूलों के ईमान के तमाम अमाल पर गौर करें तो हम देखते हैं कि ईमान खुदा के लिए कामिल मोहब्बत से उभरा था, और इस ईमान के वसीला वो आसमान की बादशाही की उम्मीद रख सकते थे। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा ईमान हमारे आसपास किसी बुहतान या रुकावटों के बायस ठंडा पड़ने की बजाय खुदा के लिए हमारी मोहब्बत से हर रोज़ मजबूत तर होगा। चाहे खुदा के लिए हमारी मोहब्बत कितनी ही अजीम क्यों ना हो, ये सिर्फ उतनी ही वसी हो सकती है जितनी कि एक बच्चा खरगोश अपने बाजू फैलाता है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि खुदा के लिए हमारी मोहब्बत कितनी बुलंद है, ये खरगोश के बच्चे की छलांग से ज़्यादा नहीं हो सकती।
پھر بھی اگرچہ خدا ہمیں اپنی بے انتہا محبت بخشتے ہیں پر انہوں نے نہ اس کا اظہار کیا اور نہ ہی اسے دکھایا۔ 내가 너를 이만큼 사랑했다 하고 اگر وہ ہر روز کہتے میں نے تم سے اتنی محبت رکھی ہے تو شاید ہم ان کی محبت کی شدت اور مقدار سے مغلوب ہو جائیں۔ 짓눌려 버릴 수가 있을 것입니다. خدا نے خاموشی سے ہماری پرورش کی اور ایک بھی لفظ کہے بغیر خاموشی سے ہم سے محبت رکھی۔ 사랑해 오신 하나님이십니다. ہمیں اپنے آپ سے پوچھتے ہوئے یہ دریافت کرنا جاری رکھنا چاہیے کہ ہم باپ اور ماں کے لیے کیا کر سکتے ہیں، 어떻게 ہم انہیں کیسے خوشی دے سکتے ہیں اور ہم کیسے انہیں جلال دے سکتے ہیں۔ 이 점을 늘 ہمیں ہمیشہ ان سوالات کو ذہن میں رکھنا چاہیے اور دوبارہ اس جلالی حالت میں بدلنے کی کوشش کرنی چاہیے جس سے ہم لطف اندوز ہوتے تھے۔ ان میں سے اہم ترین پہلو باپ کی محبت اور ماں کی محبت ہیں۔ 어머니의 사랑이라고 되어 있습니다. اس لمحہ پر جب ہمیں باپ کی محبت اور ماں کی محبت کا احساس ہوتا ہے تو وہ ہم اپنی اصل خوبصورت حالت یعنی ابدی فرشتوں کی حالت میں بدل سکتے ہیں۔ 변모될 수가 있습니다. یہ امید کرتے ہوئے کہ آپ اور میں ایمان، محبت اور ابتدائی کلیسیا کے مقدسین سے 7 گنا زیادہ مضبوط امید کے ساتھ دنیا کو بچانے میں پیش قدمی کریں گے۔ میں آج کا وعظ ختم کرتا ہوں۔ 여러분과 제가 꼭 되기를 부탁드리면서 말씀 이것으로 마칩니다. شکریہ۔ 감사합니다.